یا اللہ پلیز مدد۔ وہ اندھا-دھند بھاگ رہی تھی، دوپٹے سے بے-نیاز۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنے پردے کا خیال نہیں تھا، بس عزت کے لالے پڑے تھے۔ ابھی ایک دن پہلے حیات عزت دار زندگی جی رہی تھی، مگر کالج سے واپسی پر کسی نے اسے اغوا کر کے جسم فروشی کے لیے غیر ملک بھیج دیا، جہاں سے وہ موقع پا کر بھاگ نکلی۔ انجان جگہ، انجان لوگ، بس بھاگ رہی تھی کہ گاڑی کے سامنے آ گئی۔ جب ہوش آیا تو شاندار کمرے میں آرام دہ بستر پر تھی، کاٹن کے لباس میں شال کندھے پر اوڑھے ایک نہایت وجیہہ شخص اس کے سامنے آیا تو حیات کی جان نکلی، جو والہانہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈرو مت حیات سکندر، اب تم محفوظ ہو۔ اس کی بھاری آواز اور بولتی نگاہیں حیات کا سانس بند کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص نے ایک عرصے تک کیسے اسے پاگلوں کی طرح تلاشا تھا، اور آج وہ اسے سامنے۔ مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، چاہے تمہیں جو کرنا پڑے، بس اس لڑکی کو کسی بھی حال میں مجھ تک پہنچاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہاری 7 نسلیں یاد رکھی کہ سکندر سیال پاشا کون ہے۔ موبائل فون کے اسپیکر سے گونجتی ہوئی بھاری آواز پر سامنے والے کا سانس حلق میں ہی ہوش کھو چکا تھا۔ باس، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا اس لڑکی کو آسمان کھا گیا یا پھر زمین نکل گئی ہے۔ ہم نے ہر جگہ اس کا پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر اس جگہ جہاں آپ نے ہم سے کہا تھا، مگر وہ اس شہر کے چپے چپے میں کہیں بھی نہیں۔ کیا ہم کہیں اور اس کی تلاش کریں؟ یہ دنیا بہت بڑی ہے باس، ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ ہڑمڑاتے ہوئے کہتے ہوئے سامنے موجود اس کے آدمی نے دلیل دینا چاہی تھی، مگر سامنے سے محسوس ہوتی بھاری خاموشی پر مزید اس کی جان حلق میں اٹکی۔ نہیں، بس ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس لڑکی کو تلاش کر سکیں۔ اگر وہ اس شہر میں نہیں ملی تو اس کے آس پاس کے شہر میں مل جائے گی، وہاں بھی نہیں ملی تو دنیا اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ ہم ایک لڑکی کو تلاش نہ کر سکیں۔ میں بھی اپنے آدمیوں کو کام پر لگا دیتا ہوں، جہاں بھی وہ لڑکی دکھے گی اسے فوراً آپ کے پاس لایا جائے گا، آپ فکر مت کریں، بس کچھ وقت ہمیں دے دیں۔ بوکھلاتے ہوئے سامنے سے مزید وضاحت دینے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب سے ہنوز خاموشی اس کی منتظر تھی۔ تو ہمارے پاس بس کچھ وقت ہے سیم، اب مجھے جواب ہاں میں ہی ملنا چاہیے۔ مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں اپنے سامنے اپنے پاس چاہیے، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی اور کر سکے گا۔ ہاں، مگر اس کام کو دیکھنے کے لیے تم اس دنیا میں موجود نہیں ہوگے۔ تم سے جتنا کہا جاتا ہے بس اتنا کرو۔ سرد ابھرنے والی آواز پر سیم اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اپنے وجود کی کپاہٹ پر قابو پاتے فوراً موبائل بند کر چکا تھا۔ دھاڑ دھاڑ دھڑکتے ہوئے دل کو کانوں میں بجتا ہوا وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ یہ انسان ہے کہ جلاد؟ اس کی تو آواز ہی کافی ہے ایک انسان کو مارنے کے لیے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوچتے سیم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا، اور پھر ہڑبڑاہٹ سے موبائل اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے سامنے کی طرف چلا جا رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ موبائل پر چیختی ہوئی اس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے، نہیں تو۔ دور جاتے ہوئے سیم کی آواز لمحہ بلمحہ آہستہ ہوتے ہوئے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کا غصے کا گراف ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگر وہ اس کام میں مزید کوتاہی کرتا تو نہ جانے سکندر سیال پاشا اس کے ساتھ کیا کرتا۔ خوف سے ایک جھجھری سی تھی جو اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ بے حیا لڑکی، ایک تو ہم نے تمہیں اس گھر میں پناہ دی ہے، اور اوپر سے تم مجھ سے ہی زبان درازی کر رہی ہو۔ رشیدہ چلاتے ہوئے بولتے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ چکی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب کپکپاتے ہوئے اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے تھی۔ چچی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں بس۔ کپکپاتے ہوئے لبوں سے نکلنے والے اس کے الفاظ بیچ راستے میں ہی رک چکے تھے، جب پاس پڑے ہوئے وجود کے ہاتھ میں جنبش ہوئی تھی، اور سخت ہاتھوں کی گرفت میں اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے محسوس کر کے وہ اپنے لبوں کو بیچ راستے میں ہی روک چکی تھی۔ چاچی، اسے معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی جگہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ابھرنے والی آواز پہ بے ساختہ حیات نے اپنے بھائی ساحل کو دیکھا۔ اسے سمجھا لو، میرے ساتھ اگر زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو اسے اس گھر میں ہی باہر نکال پھینکوں گے، اور پھر تم اور یہ بھی جو کرتے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاتھ جھلا کر کہتی ہوئی رشیدہ بیگم آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں کو کوسے دے رہی تھی، جو بے بسی سے بس ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے رہے تھے۔ آپ ہی، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ آپ اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اگر میں غیرت مند بھائی نہیں ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ میں سچ میں چاہتا ہوں کہ آپ روز روز کی بے عزتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ کاش کہ میں اس قابل ہوتا کہ آپ کو اس زندگی سے نجات دلا سکتا۔ بے بسی سے کہتے ہوئے ساحر نے اپنی معذور ٹانگوں کی جانب دیکھا، جو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر کا محتاج کیے ہوئے تھی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں اسکالرشپ پر اپنی تعلیم مکمل کرنے ہی والی ہوں، بس کچھ وقت اور میں جاب ڈھونڈ کر سب سے پہلے تمہارا علاج کراؤں گی، اور پھر تم کھانا اور ہم دونوں مل کر اس گھر سے نجات حاصل کر لیں گے، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ نرمی سے کہتی ہوئی جھک کر اس کے سامنے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کس قدر اذیت میں مبتلا ہے، وہ اس کی اذیتیں مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ ایک امید تو تھی اس کے سہارے، جو وہ زندہ تھی۔ کم از کم اس گھر میں رہتے ہوئے اسے عزت و میسر تھی ہی۔ بے بسی سے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ساحر اپنی آنکھوں کو میچ چکا تھا۔ حقیقت سے آگاہ تو وہ بھی تھا، مگر کچھ اعتراف کرنے کی ہمت ان دونوں میں ہی نہیں تھی۔ یہ امید ہی تو تھی جس کے ساتھ وہ زندہ تھا۔ اگر یہ امید بھی اسے چھن جاتی تو وہ دونوں کہاں جاتے؟
बॉस, हमें वो लड़की मिल गई है। संजीदगी से उभरने वाली आवाज़ पर सामने मौजूद सैम की सांस हलक में ही अटक चुकी थी। बलाखिर एक अरसे बाद वो लड़की उन्हें मिल ही गई थी, जिसकी तलाश उनके ज़िम्मे थी। वो लड़की कहाँ है? किस हाल में मौजूद है? क्या वो ठीक है? अगर उसे कुछ भी हुआ, तो बॉस हमारी गर्दनें उड़ा देंगे। ये बात अच्छे तरीके से याद रखना। अब जल्दी से मुझे मालूमात दो। ऊँची आवाज़ में चिल्लाते हुए एक झटके से सैम उठ खड़ा हुआ था, जबकि यहाँ से वहाँ चलते हुए उसने अपनी बेचैनी को काबू करने की भरपूर कोशिश की थी। सर, वो लड़की एक कॉलेज में पढ़ रही है। सरगुजा में एक मामूली से कॉलेज में वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है। हमने उसकी कुछ तस्वीर ली हैं। हमें भरपूर यकीन है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश बॉस को है। सामने से भरने वाली आवाज़ पर एक झटके से सैम के कदमों को ब्रेक लगी थी, जबकि दिल धड़कते हुए कानों में बजा। मुझे 1 सेकंड के अंदर-अंदर वो तस्वीर अपने मोबाइल फ़ोन में चाहिए, मज़बूत आवाज़ में कहता हुआ वो एक झटके से मोबाइल कॉल काट चुका था, जबकि अगले ही लम्हे मोबाइल पर उभरती हुई तस्वीर देखकर बिला साख्ता उसने इत्मीनान का सांस भरा। हाथ खुद ब खुद गले तक जा पहुंचा था। अगर ये लड़की उसे नहीं मिलती तो उसका तन सर से जुदा हो जाता। दूसरे ही लम्हे उसकी उंगलियां बेसाख्ता चलते हुए इस तस्वीर को आंखें मुंतकिल कर रही थी। इत्मीनान का गहरा सांस लिए वो पीछे बिस्तर पर ढेर हो चुका था। बिलाखिर एक अरसे बाद ही सही उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। जिमी, कुछ करो। इस लड़की ने खुदकुशी करके हमारी मौत को दावत दी है। हमें किसी भी हाल में एक और खूबसूरत लड़की चाहिए, नहीं तो हमारी लड़कियों का कंटेनर इटली पहुंचते ही हमारी मौत तय है। तुम जानते हो ना, एक तो बहुत ही मुश्किल है हमसे ये ट्रक अरेंज किया है। नहीं तो इटली का वो माफिया डॉन पाशा किसी मक्खी को भी अपने इलाके में पार मारने नहीं देता। आप कुछ करो, हमें एक अदद लड़की लाकर दो। झुंझलाते हुए आवाज पर सामने बैठे हुए जिमी ने बेसाख्ता 2 उंगलियों से अपने माथे को मसला। मसला ये था कि इतनी जल्दी में वो किसी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भागने पर मजबूर नहीं कर सकता था। एक ही रास्ता था, अगवा करके लड़की को फंसाकर उसे कंटेनर के साथ ही बेच देना। यही ख्याल उसके जहन में उभरा था, और फिर बिला साख्ता उसने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लड़कियों के कॉलेज के सामने गाड़ी को ब्रेक लगाई। गर्ल्स कॉलेज कुछ ही देर बाद लड़कियों का हुजूम छुट्टी के बाद एक एक निकलते हुए उसे बाहर दिखाई दिया था। उसे बस तलाश थी किसी ऐसे मौके की जहां वो किसी अकेली लड़की को दबोच कर उसे अपने साथ लेकर जा सके, और जल्दी ये मौका मैसर आ चुका था। कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो आज खासी देर हो चुकी थी, जबकि बाहर निकलते ही कोई सवारी भी उसे दिखाई नहीं दी थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर सामने ही कुछ रास्ता सुनसान नजर आता था, जहाँ से गुजरकर उसे जाना था, और उस रास्ते से निकलते हुए उसकी जान निकल जाती। धीरे दिल में आयतल कुर्सी का वेट करते हुए वो आगे आई थी, मगर शायद लगता था कि आज किस्मत में ही कुछ और लिख दिया गया था। चंद कदमों के फासले पर ही कार एक झटके से उसके करीब आकर रुकी, और फिर देखते ही एक आदमी कार से निकलते हुए उसकी जाने खतरनाक तेवर लिए बढ़ा। इससे पहले कि चीखते हुए वो किसी को मदद के लिए पुकारती, उसके बालों को दबोच कर मुंह पर रखे जाने वाले रुमाल पर ही उसकी सांस हलक में अटकी थी, और खुद को बेबसी से वो इस इंसान की बाहों में झूलता हुआ पा गई। एक झटके से ही वो इंसान उसे गाड़ी में फेंक कर गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया था। लड़की का इंतकाम हो गया है। लड़की का इंतजाम हो गया है, और तुम यकीन नहीं करोगे कि ये लड़की किस कदर खूबसूरत है। बस ये समझ लो कि चलती फिरती आफत है। अब ये बात जहन में रखना, मुझे इस लड़की का दुगना मुआवजा चाहिए। एक तो इतने कम वक्त में, और फिर इतनी खूबसूरत लड़की जिसको मैंने अभी तक चखा भी नहीं। कमीनगी भरी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल फोन को कान पर लगाए उसने पलटकर हयात को देखा था, जो बेहोश सी अपनी किस्मत से अनजान थी। भारी होते पपोटों के साथ उसकी आंख खुली थी। उसे नहीं मालूम कि कितना वक्त हो चुका था उसे बेहोश हुए हुए। बस उसकी जब आंख खोली थी, तो उसने बेसाख्ता खुद को एक लड़कियों की मंडी में पाया था। जिस तरह भेड़ बकरियों को एक साथ इकट्ठा करके उसके ऊपर पहरेदार ठहराए जाते हैं, ठीक इसी तरह उसने लड़कियों के हुजूम में खुद को बेबस देखा। पहला अख्तियार यहाँ वहाँ देखते हुए उसने दूसरी लड़कियों को भी एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई पाया था। चकराते हुए सर के साथ उठकर बैठते हुए उसे एक झटका सा लगा था कि वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां बेपर्दा थी। इनके वजूदों पर दुपट्टे नाम की चीज नहीं थी, और वो तमाम की तमाम पाकिस्तानी थी। फिर आखिर उसका दिल धड़का था। ये सब कुछ क्या हो रहा था? क्या वो अगवा होकर गलत जगह पर आ गई थी? अभी वो ये बात सोच ही रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और एक खबीज चेहरे के साथ इंसान अंदर दाखिल हुआ। जिमी, तुम्हें इसकी भारी कीमत मिलनी चाहिए। तुमने इस कंटेनर में आधी से ज्यादा लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हें उनके घर की इज्जतदार जिंदगी छोड़कर यहाँ जिद्दत फरोशी करवाने के लिए मजबूर करके हमारा आधे से ज्यादा काम आसान कर दिया है, और तुम यकीन मानो इसका बहुत अच्छा मुआवजा तुम्हें जरूर मिलेगा। बस थोड़ी सी तसल्ली, कदर थपथपाकर कहते हुए जैकब ने सामने बेसुध पड़ी हुई लड़कियों को देखा था। इसकी नज़र में हकारत से थी। वो लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जतदार घराने को छोड़कर यहाँ मौजूद थी, उन्हें जिस्म फरोशी के बाजार में बेचना ही बेहतर था। जो खुद ही अपनी नुमाइश करने के लिए बाहर निकली थी, तो भेड़िए तो उनके मुंतजिर थे। जबकि इनकी बात सुनती हुई हयात के सर पर तो पहाड़ टूट पड़ा था। तो क्या वो इस मंडी में बिकाऊ माल बनकर आई हुई थी? खौफ से लरजते हुए वजूद के साथ उसने यहाँ वहाँ दूसरी लड़कियों को देखा था। वो तमाम की तमाम लड़कियां खूबसूरत थी, मगर नहायत ही अबतर हालत में। किसी किसी लड़की के वजूद पर कपड़े फटे हुए थे, और किसी के वजूद नीम उरिया हालत में मौजूद थे। अलगर्ज वहाँ पर हर तरह की लड़की मौजूद थी। अजाब ख्याल खुद परस्त और मजबूर भी। बिला अख्तियार उसे खुद पर रहम और बाकी सब पर तरस आया था। वो क्या करती?
क्या वो इन भेड़ियों के दरमियान बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी थी? पहला इख्तियार उसने दिल में खुदा को याद किया था। या अल्लाह, आप जानते हैं कि मैंने कभी भी आपकी नाशुक्री नहीं की। मैं कभी भी इस घर में रहते हुए भी तेरी नाशुक्री नहीं की। मेरे खुदा, मुझे यहाँ से निजात देते, मुझे वापस इस इज्जतदार जिंदगी में भेज दे मेरे मौला। मैं तुझसे यहाँ से रिहाई की भीख मांगती हूँ। कांपते हुए दिल के साथ कहती वो, अपने हाथों को टटोलते हुए खुद पर गिरी हुई लड़कियों को यहाँ वहाँ करती उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी, जब सामने ठहरे हुए जैकब की निगाह उस पर पड़ी। इस लड़की को यहाँ लेकर आओ। हयात की जानिब इशारा करते हुए वो खबासत भरे लहजे में गोया हुआ था, जबकि आगे बढ़ते हुए जिमी ने बेसाख्ता उसे लड़कियों के झुरमुट से निकालते हुए बालों से दबोच कर आगे की जानिब धकेला। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ती हुई वो जैकब नामी 40 साला आदमी के सामने बेपर्दा खुले हुए बालों के साथ मौजूद थी। ये लड़की तो कयामत है, इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बस अगर अनछुई होती तो ज्यादा मजा आता। अपनी नजरों से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक नहाते हुए वो नहायत ही बेबाक अंदाज में गोया हुआ था, जबकि हयात को इसके वजूद और इसकी बातों से घिन आई थी। वैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये लड़की अभी तक अनछुई है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसको मैंने ऐन वक्त पर उसके कॉलेज से बाहर अगवा किया। इसको मैंने अभी तक छुआ नहीं है। गर्दन पर हाथ फेरते हुए वो हयात को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती जैकब से गोया हुआ था, जिस पर जैकब की आंखें भी चमक उठी। तो क्या ख्याल है, क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए? खबीस नजरों से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए वो जिमी से गोया हुआ था, जबकि जिमी ने भी खबासत से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। खबरदार, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। कपकपाते हुए लबों से उभरते हुए उसने खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी, जबकि जिमी ने आगे बढ़ते हुए इसके दोनों हाथों को थामकर पीछे कमर पर बांधा। जबकि मजामत करती हुई वो बगैर दुपट्टे का वजूद लिए सामने ठहरे हुए इस गरीब इंसान जैकब को देख रही थी। ये तो वो समझ चुकी थी वो लोग पाकिस्तानी नहीं थे, क्योंकि इनकी शक्लों से ही वो कुछ अलग से दिखाई देते, शायद किसी और मुल्क के लोग। मगर इनमें इतनी जरूरत कैसे आ गई कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए सरेआम ऐसा गलीज काम करे, और हमें रोकने की कोशिश कौन करेगा? खबासत से बोलते हुए आगे बढ़कर जैकब उसके सामने झुकते हुए गोया हुआ था। मेरे भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को। अपना हलक तर करते हुए और लड़खड़ाते हुए लहजे में उसे अपनी तरफ से ठहराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जब इन दोनों का बेसाख्ता कहकर फिजा में गूंजा। लाइक सीरियसली, तुम्हें अभी भी मालूम नहीं है कि? खबासत से बोलते हुए जैकब झुककर उसकी आंखों में देखते हुए गोया हुआ था। क्या क्या मालूम नहीं है? दहलते हुए दिल के साथ इन दोनों के चेहरों को देखते हुए धड़कते हुए दिल के साथ गोया हुई। यही कि तुम अपने मुल्क में नहीं हो, तुम इस वक्त इटली के काले बाजार में हो, जहाँ तुम खुद तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी यहाँ से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरा इलाका है, जैकब का इलाका। सतलजे में बोलते हुए झुककर उसके चेहरे पर फूंक मार चुका था, जबकि हया तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। बेख्तियार उसके लबों से बड़बड़ाहट अदा हुई थी, जब जिमी ने एक झटके से उसे बालों से खींचते हुए आगे की जानिब धकेला। इससे पहले कि जैकब उसे अपनी गलीज बाहों में घेरता, पीछे से एकदम से दरवाजा बजा, जबकि वो दोनों बौखलाकर उसे छोड़ते हुए दरवाजे की जानिब पलट चुके थे। बॉस ने तुम्हें बुलाया है जैकब, अभी के अभी वहां पहुंचो, सरसी आवाज में सामने से मिलने वाले हुक्म पर जैकब की जान लबों पर आई थी। यानी कि यहाँ के बॉस के पास यहाँ के बॉस के यहाँ के बॉस के भी बॉस हुआ करते हैं। वो दोनों उसे इसी कमरे में बंद करते हुए वहां से बाहर निकलते चले गए, जबकि बेबसी से वो अपने बालों को दोनों हाथों में दबोचते हुए घुटना के बल जमीन पर गिरी। पीछे पलट कर खौफजदा निगाहों से इन लड़कियों की जानिब देखा था, जो एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई अपनी आने वाली किस्मत से अनजान थी। नहीं, मैं यूँ इस तरह नहीं नहीं मान सकती। मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से आज़ादी चाहिए। मैं अपनी इज़्ज़त को इन दोनों के हवाले नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से निकलकर एक और कोशिश करनी होगी। मैं यूँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दिल से एक आवाज़ उठ रही थी, जिस पर वो उठकर खड़ी हुई थी। खड़े होते हुए यहाँ वहाँ देखते फरार का कोई रास्ता तलाश कर रही थी, तभी उसे एक जानिब से रोशनदान दिखाई दिया था, मगर वो उसकी पहुँच से बहुत दूर था। लड़कियाँ अभी तक बेहोशी की हालत में एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई थी, जबकि वो अब पूरी तरह होश में आई थी। शायद उसे किसी और तरह का नशा दिया गया था, और इन लड़कियों को और तरह का। वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी, तभी उसे अपनी तरफ कदमों के आने की आवाज़ सुनाई थी, जिस पर धड़कते हुए दिल के साथ वो दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई। हाथ में लोहे का एक रॉड थामे हुए वो बस अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती थी। जो भी होता फिर देखा जाता, मगर वो यूं अपनी इज्जत को खराब होता हुआ नहीं देख सकती थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने वाला और कोई नहीं बल्कि जिमी था, जो खुसूसन उसी लड़की को देखने के लिए आया हुआ था। जब एक झटके से हयात ने रॉड उसके सर पर दे मारा, खून का उभरता हुआ फवारा उसके वजूद को दागदार करते हुए वो ढेर हो चुका था। जबकि धड़कते हुए दिल के साथ रॉड एक तरफ फेंकी हुई वो दरवाजा खोल कर बाहर की जानिब भाग चुकी थी। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे अपने पीछे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। कोई उसे पकड़ने के लिए भी कह रहा था, मगर उसे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी। भागकर दूसरी तरफ से निकलते हुए उसे एक छोटा सा गेट दिखाई दिया। यकीनन वो पीछे का दरवाजा था, जहाँ कोई भी पहरेदार नहीं था। तभी अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए भागकर सड़क पर निकल चुकी थी। या अल्लाह, प्लीज मदद कर। वो अंधाधुंध भाग रही थी, दुपट्टे से बेनियाज आज जिंदगी में पहली बार। और उसे अपने पर्दे का ख्याल नहीं था, बस इज्जत के लाले पड़े थे। अभी एक दिन पहले हयात इज्जतदार जिंदगी जी रही थी, मगर कॉलेज से वापसी पर किसी ने उसे अगवा करके जिस्म फरोशी के लिए गैर मुल्क भेज दिया, जहाँ से वो मौका पाकर भाग निकली।
अनजान जगह अनजान लोग बस भाग रही थी कि गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी से पड़ने वाली ठोकर पर वो उछलकर कदम दूर जा गिरी, जबकि सड़क पर टकराने की वजह से कोहनिया और एक हाथ पूरे तरीके से जख्मी हुआ था। सर पर भी कुछ चोट लगी थी, जिस पर बसारा धुंधलाकर उसको आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। चकराते हुए सर के साथ धुंधलाई नजरों के बार बार झपक कर वो उठ बैठी थी। सिल्क के मखमली बिस्तर पर उसका वजूद निहायत दिलफरेब दिखाई दे रहा था। अभी वो चकराते हुए सर के साथ समझने की कोशिश कर रही थी जब अंधेरे कमरे में खिड़की के पास खटका हुआ और कुर्सी पर बैठा हुआ एक वजह से भरपूर नौजवान उठकर कदम कदम चलते हुए उसकी जानिब आया। सफेद कॉटन के लिबास में सिया शॉल कंधे पर ओढ़े एक निहायत वजीहा शख्स उसके सामने आया तो हया की जान निकली, जो वालिहाना निगाहों से उसे ही देख रहा था। डरो मत हयात सिकंदर, तुम अब महफूज हो। इसकी भारी आवाज और बोलती निगाहें हयात का सांस बंद कर रही थी। वो कौन था और उसे यूं क्यों देख रहा था? क्या वो भी इन लोगों में शामिल था या फिर वो बचा ली गई थी? बहुत सारे सवाल जहन में घूमते हुए उसे सुन पड़ते पर मजबूर कर रहे थे, मगर वो नहीं जानती थी कि सामने बैठे शख्स ने एक अरसे तक कैसे उसे पागलों की तरह तलाशा था और आज वो उसके सामने, वो किसी ख्वाब की ताबीर की जैसे मौजूद थी। कौन तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपने लब काट कर पूछते हुए वो उसकी जानिब सहमी हुई नजरों से देखी गई थी, जबकि उठकर बैठते हुए वो लिहाफ को अपने दोनों हाथों में मजबूती से दबोच गई। अंदाज ये था कि जैसे अभी वो कुछ गलत बोले और हयात फट से बिस्तर से नीचे छलांग लगाकर दरवाजे की जानिब भाग जाए। जिंदगी ने तजुर्बे ही इतने बुरे दिए थे कि अब उसे किसी पर भी यकीन करने से खौफ महसूस हो रहा था, जबकि उसका खौफ महसूस करते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था। मजीद चंद कदम चलकर उसकी जानिब आते हुए वो उसके ऐन सामने आकर ठहरा। उसकी नीली साहिर आंखें किसी जादूगर की तरह हिसार में जगरती हुई महसूस हो रही थी। मेरा नाम सिकंदर सियाल पाशा है और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ ये बात बहुत जल्द तुम जान लोगी। धीमी मगर मजबूत आवाज में बोलते हुए वो अपनी नीली साहिर आंखों से उसे देखते उसे घबराहट में मुबतला कर चुका था, जबकि अब की मर्तबा हयात को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को उसके हिसार से बचाती, जो इस आंखों से ही घायल करने पर तुला हुआ था। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे बस मेरे भाई के पास जाना है। कपकपाते हुए लबों से बोलती हुई वो उससे अपनी निगाहें मोड़ चुकी थी, जिस पर सिकंदर सियाल लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए हुए उसके चेहरे को देखकर अपना निचला लब दबा चुका था। तुम जानती हो तुम इस वक्त कहाँ हो? पुरस्कार लहजे में बोलते हुए वो उस पर हल्का सा झुका, जबकि हयात अपनी सांस तक रोके हुए उसे देख रही थी। सामने ठहरा हुआ मजबूत मर्द आधा पाकिस्तानी और आधा अंग्रेज दिखाई देता था। इसकी वजह से भरपूर नकुश में कहीं कहीं मिलावट नुमाया थी, जो उसे मजीद खूबरू बनाती। उसके सवाल पर नफी में सर हिलाती हुई वो दोबारा से अपनी पलकें उठाए उसकी साहिद आंखों में देख गई। तुम इस वक्त इटली में मौजूद हो और ये मेरा सिकंदर सियाल पाशा का इलाका है। ये मेरा इटली है। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकता। हमारे धंधे का एक असूल है, जो एक बार हमें शामिल हो जाता है वो फिर यहाँ से दो ही सूरतों में बाहर जा सकता है। पहला मरकर और दूसरा जब सिकंदर सियाल पाशा चाहे। सर्द सी आवाज में बोलता हुआ वो उसके वजूद में कपकपी दौड़ाने का बाइस बना। तो मुझे जाने दो प्लीज। आंखों में नमी लिए हुए वो उसकी जाहिर आंखों में देखती हुई गोया हुई थी, जिस पर सिकंदर सियाल पाशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। आज के दौर में बगैर किसी मतलब के किसी से उम्मीद लगाना बेकार है, ये तो तुम्हें मालूम है ना? तो चलो एक डील करते हैं। एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी और दूसरी बात मैं तुम्हारी मानूंगा। वो रिस्टार्ट लहजे में बोलता हुआ वो गहरा सांस लेकर चंद कदम खिड़की की जाने बढ़ गया। तुम मुझे क्या चाहते हो? बेचैनी भरी आवाज में कहती हुई वो उसकी जानिब अपना रुख मोड़ गई थी, जो खिड़की के सामने खड़े हुए पार के मनाजिर देख रहा था। मुझसे शादी कर लो, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। सरसरी से लहजे में कहते हुए वो दूर जगमगाती हुई रोशनियों को देख रहा था, जबकि उसकी बात पर हयात ने अपनी धड़कनों को सुस्त होता महसूस किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भला तुमसे शादी क्यों करने लगी? मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ अपने भाई के पास। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जिस तरह बाकी सबने मुझे एक बिकाऊ माल समझकर मेरे मुल्क से मुझे अगवा किया और यहाँ लाकर मुझे बेचना चाहा। जब मैं इनकी चुंगल से छूटकर आ सकती हूँ तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी गोली ऑफर पे तो हयात के तलवों पर लगी थी और सर पर बुझी। तभी भड़क कर बोलती एक झटके से लिहाफ खुद से दूर झटकते हुए उठ खड़ी हुई थी, मगर चंद कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाते हुए जब सिकंदर सियाल पाशा आगे बढ़ते हुए उसे कलाई से थामकर अपनी जानिब खींच चुका था। दोनों की निगाहें मिली थी तो दिल की धड़कनों ने रफ्तार तेज पकड़ी। तुमसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो तुम तो फिर भी एक जिंदा इंसान हो, बेहतर होगा जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप ऐसा कर लो, नहीं तो तुम अपने लिए मसाइल पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। धीमी आवाज में कहते हुए वो झुककर उसके चेहरे पर झूल रही बालों की लट को कान के पीछे अड़क सा चुका था, जिस पर जंगली बिल्ली बनी हुई वो उसके हाथ पर अपना हाथ जोर से मारती हुई पीछे झटक चुकी थी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक उंगली उठाकर कहती हुई वो उसे गहरा मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। चेहरे पर उभरते हुए डिंपल पर उसकी नजर बेसाख्ता कर गई और फिर वो अपनी निगाहें चुराते हुए अपने चेहरे का रुख मोड़ चुकी थी। बेशरम ना हो तो कैसे अपनी वजह की नुमाइश कर रहे हैं? दिल में सोचती हूँ वो खफ्त से सो पड़ रहे अपने गालों को छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ चुकी थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तड़क कर पूछते हुए उसने सिकंदर सियाल पाशा की जानिब देखा।
मैं सोच रहा हूँ कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सिकंदर सियाल पाशा के सामने आवाज़ उठाने की, और तुम वो पहली इंसान हो जिसने न सिर्फ मेरे सामने आवाज़ उठाई है बल्कि मेरे सामने उंगली उठाकर धमकी देने के बावजूद भी इस वक्त तुम सही सलामत मौजूद हो। क्या ये मेरी मोहब्बत है? मीठे दिल फरेब लहजे में बोलते हुए वो किसी के भी दिल को लूट लेने की ताकत रखता था, जबकि उसकी बात पर बेसाख्ता हयात के दिल ने एक बीट मिस की। बिला शुबा वो एक वजह से भरपूर नौजवान था। मैं तुम्हारी इन फरेब कारियों में आने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। खुद को उसके छलावे से बचाने की भरपूर कोशिश करती हुई वो अपने चेहरे को संजीदा रखते हुए गोया हुई थी। तो फिर तुम भी मेरी बात अच्छे तरीके से जान लो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और तुम अपनी रजामंदी से इस निकाह के लिए हामी भरोगी, संजीदगी से लहजे में बोले हुए। अब की मर्तबा वो उसकी कलाई दबोचकर अपनी जानिब खींचते हुए गोया हुआ था, जबकि कटी हुई डाल की मानिंद वो उसके सीने से आकर लगती हुई अपने दिल की धड़कनों को उसकी धड़कनों के साथ मिलते महसूस कर गई थी। ठीक है, मेरी लाश से हामी भरवा लेना, क्योंकि मेरे जिंदा रहते तो ये मुमकिन नहीं, सर्द सी आवाज में कहते हुए वो उसकी आंखों में देखी हुई गोया हुई थी, जबकि अब की मर्तबा सिकंदर सियाल पाशा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। हामी भरने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए भी तुमसे हामी भरवा सकता हूँ। वो क्या है ना, इस दुनिया में तुम्हारा एक कमजोर हिस्सा भी मौजूद है, शायद तुम भूल रही हो, मगर सिकंदर सियाल पाशा सामने वाली की कमजोरियों को कभी भी नहीं भूलता। तुम अगर अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं, साहिल अजीज। लबों पर पूरी स्टार मुस्कुराहट सजाए हुए वो यूं बोला था कि हयात ने एक झटके से पलटकर उसका चेहरा देखा। बिला साख्ता आंखों में कुछ उभर कर आया। शायद वो कर्ब था, उसका भाई, उसका जान से प्यारा भाई अब किसी और के निशाने पर था। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तो मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो वहाँ पाकिस्तान में महफूज है, सरसराते लबों के साथ कहती हुई वो अपना हालत तर कर गई थी, जिस पर बेसाख्ता सिकंदर सियाल पाशा का कहका गूंजा। तुम्हें लगता है कि मैं सिकंदर सियाल पाशा वहां तक रसाई हासिल नहीं कर सकता? तो माय डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी रसाई कहाँ तक है अभी तो इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकती। एक झलक देखना चाहोगी? मजीद एक कदम चलकर उसकी जानिब झुकता हुआ धीमी आवाज में गोया हुआ था, जिसका हयात की सांस हलक में अटक चुकी थी। फिर देखते ही देखते मोबाइल फोन निकालकर एक कॉल मिलाते हुए चंद सेकंड इंतजार के बाद जैसे ही मोबाइल फोन उसकी जानिब घुमाया था कि हयात के सर पर आसमान गिरा। इसका भाई, इसकी जान से प्यारा भाई बिस्तर पर दराज आंखें बंद किए हुए था, जबकि सिकंदर सियाल पाशा का एक आदमी उसके सर पर कन रखे हुए सिकंदर सियाल पाशा के एक हुक्म का मुंतजिर था। मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। बेसाख्ता आंसू आंखों से बह निकले। वो जो कितने वक्त से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ आंखें बुरी तरह टूट चुकी थी। दोनों हाथों में मोबाइल को थामकर अपने भाई के चेहरे को छूने की कोशिश करते हुए वो उसे बचा लेना चाहती थी। तभी आगे बढ़कर एक मुट्ठी में सिकंदर सियाल पाशा की शर्ट को मजबूत गिरफ्त में थामती हुई उसकी जानिब लहू छिड़काती हुई आंखों से देख गई। मेरे भाई को छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। टकमगाई हुई आंखों के साथ कहती हुई उसे हल्का सा मुस्कुराते हुए वो अपने आदमी को पीछे हटने का बोल चुका था। अटकी हुई सांस बहाल हुई थी तो आगे बढ़कर सिकंदर सियाल पाशा ने उसका हाथ थामा। चलो, होने वाली बीवी, नरम मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसकी कड़ाई को थामे हुए बाहर की जानी पड़ गया, जबकि कटी हुई डाल के मानिंद वो उसके पीछे पीछे चलती गई। मेरे भाई को छोड़ दो, अब मैं तुमसे निकाह तो कर चुकी हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? निकाह का मरहला तय होते ही वो उसे लेकर दोबारा उसी कमरे में वापस आया, जिसमें कुछ देर पहले ही वो बेदार हुई थी। तभी नम हुई आंखों के साथ कहती हुई वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते गोया हुई। जब सिकंदर सियाल पाशा उसकी जाने पलटा, कंधों पर जमी हुई शॉल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ वो हल्का सा मुस्कुराते उसकी जाने पे कदम बढ़ चुका था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिकंदर सियाल पाशा तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा? वैसे भी तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे कोई भी सौदा करो, तो क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं कि तुम ये सब कुछ छोड़ते हुए एक बीवी के फराइज सर अंजाम दो, जो कि तुम्हारे हक में बेहतर भी है? नरमी से बोलता हुआ झुककर उसके बालों की एक लट को उंगली में लपेटते हुए निहायत ही बेबाकी से गोया हुआ था, जिस पर वो अपना हलक तर्क करते हुए अपनी मुट्ठियों को जोर से भींच चुकी थी। तुमने जो कहा है मैं कर चुकी हूँ, अब इससे मजीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। प्राण पीस कर बोलती हुई एक झटके से उसके हाथ को खुद से दूर झटक चुकी थी, जिस पर हल्का सा हंसते हुए वो अपना सर झटक चुका था। वो जहाँ से भरपूर नौजवान यूं सर झुकाकर हंसता हुआ किसी का भी दिल लूट सकता था, मगर सामने मौजूद हयात शायद बेहिस थी, या फिर बगैर दिल की लड़की जो उसे देखकर यूं पिघली नहीं थी। हालांकि तो मेरी कानूनी और शरई बीवी हो, तो ये सब कुछ तो मेरे कहे बगैर करना चाहिए। साफ चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता हुआ वो आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखते हुए गोया हुआ था, जबकि उसके मजबूत और तपिश भरे हिसार में लड़ते हुए वो अपने दोनों हाथों की हथेलियां उसके सीने पर जमा चुकी थी। मुझे जाने दो सिकंदर, धड़कते हुए दिल के साथ कहती वो उसे खुद से पीछे धकेल चुकी थी, मगर वो अपनी जगह पर हुनूस कायम था। क्या मैं तुम्हें कहीं से फरिश्ता दिखाई देता हूँ जो अपनी हक हलाल की बीवी को सिर्फ उसके कहने पर छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, हयात सिकंदर सियार पाशा एक नहीं हो सकता। मैं फरिश्ता सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक अतना सा इंसान हूँ जिसकी ख्वाहिश है, जिसकी जरूरतें हैं, और तुम मेरी बीवी हो। उसे बेबाक नजरों से लेकर यूं गोया हुआ था कि हयात की रूह तक कपकपा कर रह गई। बेसाख्ता उसके हिसाब से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो नाजुक सी लड़की फड़फड़ा कर रह गई थी, जब मजबूती से उसे दबोच कर अपने सीने में भींचे हुए वो उसके चेहरे पर झुकते गाल पर अपने लब रख चुका था। जाओ, चेंज करके सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है।
संजीदगी से बोलता हुआ वो उसकी आंखों में देखते गोया हुआ था। इस मौके को गनीमत जानते हुए वो भागते हुए बाथरूम की जानिब बढ़े और एक झटके से दरवाजा पीछे बंद करते हुए दरवाजे के साथ ही नीचे बैठती चली गई। दिल में अपने भाई को लेकर 100 तरह के वसवसे उठ रहे थे, मगर वो अभी इस जालिम इंसान की गिरफ्त में थी और कर भी क्या सकती थी। रात के जिस पहर वो कमरे में लौटी थी, सिकंदर सियाल पाशा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, जिस पर इत्मीनान का गहरा सांस भरती हुई वो न चाहते हुए भी सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुकी थी। एक ही दिन में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। अपने भाई के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से वो एक ही दिन में बैरून मुल्क पहुँचा दी गई थी, और न सिर्फ यहाँ पर पहुँचा दी गई थी, बल्कि अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हुए वो एक अजीब से शख्स के साथ पूरे तरीके से बन चुकी थी, जो उसके भाई को अपने हिसाब का निशाना बनाए हुए था। अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो ये बात सोच कर ही उसका नाजुक सा दिल कँपकँपा जाता। काफ़ी देर की कोशिश के बाद बिलाखिर नींद उस पर मेहरबान हुई थी, तो बोझ के एहसास से आँखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थीं। रात को किसी पहर उसकी आँख अपने ऊपर महसूस होते बेतहाशा बोझ से खुली थी, जब उसे अपनी हड्डियाँ चढ़कते हुए महसूस हो रही थी। एक झटके से आँखें घुमाते हुए उसने पलटकर जो मंज़र देखा, वो उसकी सांस हालत में ही खुश कर गया था। सिकंदर सियाल पाशा उसे अपने मजबूत हिसाब में कैद किए हुए निहायत ही इत्मीनान से सो रहा था, जबकि उसकी नींद भग से उड़ी थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो मजबूती से उसे अपने बाहों के हिसाब में थाम गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अटकती हुई सांसों के साथ कहती वो उसके हिसाब में फड़फड़ा गई थी, जब मजबूती से थाम कर उसे अपने सीने में भींचता हुआ वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा चुका था। खामोशी से सो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा तर्क कर दूं और तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूं। नींद में डूबी वो भारी भोजन आवाज के साथ कहते हुए वो उसके हवास उड़ा गया था। तभी उसकी मजबूत चट्टानी गिरफ्त में धड़कते हुए दिल के साथ वो अपने तमाम एहतजाज तर्क कर गई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे कहे के मुताबिक मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, तो खुद को ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर सकते। टगमगाई हुई आंखों के साथ कहती हुई वो बस आंसू छलकाने को बेताब थी, जब एक झटके से आंसू खोलते हुए वो उसे और मोहब्बत मजबूत इसार में लेते हुए एक झटके से बिस्तर पर लगा चुका था। अपनी सुर्ख डोरों से सजी हुई आंखों से उसे देखता हुआ वो उसके वजूद में कपकपी दौड़ाने का बायस बना था। तुम जानती हो कि मेरी रसाई कहाँ कहाँ तक है। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे भाई की जिंदगी मेरे हाथों में है। अभी भी तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अपनी कुमार आंखों के साथ उसे देखते हुए वो दिलरुबा अंदाज में यूं गोया हुआ था कि हयात अपनी सांस तक रुक गई। हयात के लबों पर अंगूठा फेरते हुए वो उसे जिन नजरों से देख रहा था, हयात का दिल चाहा कि वो कहीं छुप जाए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कपकपाते हुए लबों के साथ बोलती वो उसकी आंखों में ही देख रही थी, जब हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, धीमी आवाज में कहते हुए झुककर उसके लबों पर मोहब्बत की मुहर सख्त कर चुका था, जिस पर हयात ने उसे पटी पटी आंखों से देखा। इससे पहले कि उसकी जिसारतें से मजीद बढ़ती, अपनी दोनों हथेलियों को दबाव उसके सीने पर डालते हुए वो उसे खुद से दूर कर चुकी थी, जब गहरी मुस्कुराहट के साथ बिस्तर पर उसके साथ ढेर होता हुआ वो उसे अपनी बाहों के हिसाब में मजबूती से जकड़ चुका था और उसका सर अपने सीने से लगाता हुआ आंखें बंद करके गहरी सांस भर गया। सो जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा तब्दील हो और मैं तुम्हें और खुद को बेबस कर दूं। धीमी आवाज में बोलते थे वो उसकी खुशबू में गहरा सांस भरते फिर से सोने की कोशिश करने लगा, जबकि हयात का दिल धड़कते हुए कानों में बज रहा था। इसकी जिसारत याद आते ही वो गर्दन तक सूख पड़ी। सुबह उसकी आंख दरवाजा खटखटाने पर खुली, जब खुद को अभी भी सिकंदर के हिसाब में महसूस करते हुए बुरी तरह झुंझुला उठी थी। अब मुझे छोड़ भी दें, मेरी हड्डियां अब टूटने ही वाली हैं। हाथ बढ़ाकर कहते हुए वो खुद को उसके हिसाब में छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिस पर नरमी से उसे अपने हिसाब में आजाद कराता हुआ उसके माथे पर लब रखते हुए उसे उठ खड़ा हुआ। अपनी शर्ट के खुले हुए बटन बंद करता हुआ वो कदम कदम चलते दरवाजे की जाने पड़ा। दरवाजा खोलकर सर्द सी निगाहों के साथ बाहर ठहरे हुए अपने दाहिने हाथ सैम की जानिब देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होगी सैम, नहीं तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों से टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सर्द सी उभरने वाली आवाज पर बेसाख्ता सैम ने अपना हलक तर किया और अपना सर झुकाकर सही अल्फाज को तलाशने लगा। सर, नीचे कुछ अहम मामलात हैं जिनमें आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। मज़ीद आपके बिज़नेस पार्टनर भी आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। अगर ये मामला इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी भी आपको परेशानी हरगिज़ भी नहीं होने देता। आहिस्ता-आहिस्ता अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए तभी आवाज़ में गोया हुआ था, जिस पर सिकंदर गहरी सांस भरकर एक नज़र पीछे पलटकर वो उसे बिस्तर पर बैठे हुए देख रहा था। कभी-कभी सैम, दिल करता है तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। सर्द से लफ्ज़ों में कहता हुआ वो एक झटके से दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद कर चुका था। पलटकर उसकी जानिब कदम कदम चलकर आते हुए वो उसकी मनमोहिनी सूरत को देख गया। तैयार हो जाओ और नीचे खाने के लिए आ जाओ। मैं रोजी को तुम्हारे लिए भेज देता हूँ। मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। नरमी से उसके दोनों हाथ थाम कर लबों से लगाते हुए वो इतनी मोहब्बत से गोया हुआ था, जैसे इन दोनों की शादी कितनी मोहब्बत और चाहत से कराई गई हो। और फिर हयात ने उसे बाथरूम की जानिब बढ़ते हुए देखा। कुछ ही देर बाद तैयार होकर वो हल्की सी मुस्कुराहट उसे पास करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे वो भी गहरा सांस भरती हुई तैयार होने के लिए आगे बढ़ गई। अब इस सरफिरे इंसान के साथ रहना था, तो अपनी ज़िंदगी को तो मुतासिर नहीं कर सकती थी ना। खैर से उसके साथ वो निकाह कर चुकी थी, तो अब हयात कहीं जा भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद
धड़कते हुए दिल के साथ वो वहाँ काम करने वाली एक मुलाज़िमा के साथ चलते हुए नीचे आई। ताज्जुब की बात थी, वहाँ मौजूद तमाम लोग, ख़्वाह वो घर में काम कर रहे हों या फिर सिकंदर के साथ खड़ा हो, उसका सेक्रेटरी हो, हर किसी ने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। निहायत ही पतले से सफ़ेद दस्ताने जो गौर करने पर दिखाई देते थे। अजीब-सा महसूस करते हुए कदम-कदम चलकर आई थी। उसके साथ ही कुर्सी पर बैठ चुकी थी, जब मेज़ पर धरे हुए नाश्ते की खुशबू ने उसकी भूख लपेट ली थी। पेट तो वैसे ही दुहाइयाँ दे रहा था, सो चुपचाप हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने खाना खाना शुरू किया था, जबकि वहाँ मौजूद तमाम लोगों के सर झुके हुए थे। एक सिकंदर सियाल पाशा ही था जो इत्मीनान से निवाला चबाते हुए उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। सर, आपको काफ़ी देर हो गई है यहाँ बैठे हुए, अब आपको मीटिंग के लिए चलना चाहिए। पीछे ठहरा हुआ उसका सेक्रेटरी सैम उसे देखते हुए गोया हुआ था, जिस पर न चाहते हुए भी एक गहरा सांस भरकर अपने सर हाँ में हिला चुका था। तुम इत्मीनान से बैठकर नाश्ता करो, और अगर बोर हो तो रोजी को लेकर घर देख लेना। मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूंगा। नरम मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उठकर खड़े होते हैं, अपने कोट को झाड़ गोया हुआ था, जबकि झुककर उसके माथे पर अपने मोहब्बत की मोहर सख्त करना नहीं भूला। खौफ का शिकार होती हुई वो उन तमाम लोगों के सामने अपना सर झुका गई थी। ये बेबाक इंसान दिल ही दिल में बड़ा हड़बड़ा कर उसे अलकाबा से भी नवाजा। मैडम, सर आपके आने के बाद बहुत तब्दील हो गए हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सर को यूं मुस्कुराते हुए भी देख सकेंगे। पास से भी रोजी ने मुस्कुराकर उसे कहा था, जिस पर वो हैरान नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हैरत को अल्फाज में ढालते हुए वो नरमी से गोया हुई। बॉस को एक खास तरह का मसला है, वो किसी भी इंसान को, ख्वाह वो आदमी हो या औरत, हाथ से छू नहीं सकते। बॉस को लगता है कि ये मसला उनके वजूद में है, जबकि डॉक्टर का ख्याल है कि ये मसला उनके दिमाग के साथ है। उनका दिमाग खुद ब खुद ऐसे खलियात बनाता है जो उन्हें ये मानने पर मजबूर करते हैं कि उनके साथ ऐसा कोई मसला है। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। हिचकिचाहट का शिकार होती हुई रोज़ी बिलाखिर उसे बता गई थी, जबकि वो बेयकीनी से रोज़ी के चेहरे को एकटक देखती चली गई। ये वो क्या कह रही थी? तो वो सब कुछ क्या था जो वो पिछले एक दिन से देख रही थी? सिकंदर सियाल पाशा का उसके करीब आना, उसके हाथ थामना, उसके माथे और गालों पर उसके लबों का लम्स वो अभी तक महसूस कर सकती थी। तो ये सब कुछ क्या था? हैरान नज़रों से रोज़ी की जानिब देखते हुए वो कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले ही थे, जब रोज़ी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाए हुए गहरा सांस भरा। जानती हूँ आप हैरान होगी कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। मतलब वो आपसे शादी कर चुके हैं और अब आपके सामने मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको हाथों से थाम भी रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस दुनिया में आप वाहिद कोई इंसान हैं जो बॉस के साथ रह सकती हैं। हम नहीं जानते कैसे, बॉस भी नहीं जानते कैसे, मगर आप वो वाहिद इंसान हैं। नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए वो उसे हैरत में होता कर चुकी थी। कुछ ना समझ आने वाले तासुरात के साथ वो दोबारा से अपने खाने की प्लेट पर झुक चुकी थी। ज़हन में बहुत सारे ख़यालात घूम रहे थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाबात उसे चाहिए थे, मगर इन सब का जवाब वो कहाँ से देती? शायद उसे इंतज़ार करना चाहिए था कि सिकंदर सियाल पाशा खुद ब खुद ही उसे तमाम हालात से आगाह कर दे। अगले चंद दिन नहायत ही गैर मुतवक्का गुज़रे थे। वो जो पहले दिन जितनी बदहवासी का शिकार थी, उतना ही अब मुतमईन थी। सिकंदर सियाल पाशा ने ज़बरदस्ती उससे निकाह तो किया था, मगर खुद को ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत नहीं कर रहा था। छोटी-छोटी जिसारतें ही थी जिस पे वो इस बेबाक इंसान को रोक नहीं सकती थी, जो उसके लिए निहायत इत्मीनान का बायस था। दोबारा कभी उसके भाई के हवाले थे, वो उसे धमकाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जबकि कुछ दिनों से उसके साथ रहते हुए वो ये बात मान चुकी थी कि रोज़ी सच में ठीक कह रही थी। वहाँ मौजूद तमाम काम करने वाले मुलाजिमों के हाथ पर चढ़े हुए दस्ताने और सिकंदर सियाल पाशा का उन्हें छूने से गुरेज बरतना इस बात की दलील था कि वो सच में आदम बेजार इंसान था। मगर फिर वही क्यों? ये वो वाहिद शख्स था, वाहिद सवाल था जो उसके ज़हन में हलचल मचा देता था। मैडम, मैं आपके लिए पानी लाना भूल गई हूँ, आप यहाँ पर इंतज़ार करें, मैं अभी आती हूँ। नरम मुस्कुराहट के साथ कहती हुई रोज़ी उसका हाथ दबाकर वापसी की तरफ जाने पलट चुकी थी, जबकि वो पीछे खुले हुए दरवाजे के साथ सामने ही सरसब्ज़ पौधों को देख रही थी। अभी वो इन खूबसूरत मनाज़िर में खोई हुई थी, जब पास से ही कहीं से दबी-दबी रोने की आवाज़ सुनाई दी। अपने कदमों को मोड़ते हुए तजस्सुस के हाथों मजबूर आगे बढ़ती चली गई। वो आवाज़ एक कमरे से उभरती हुई सुनाई दे रही थी। उसे इस बड़े से बंगले के हर हिस्से में घूमने की इजाज़त थी, सिवाय एक जगह के, और वो यही कमरा था। मगर वहाँ से आती हुई आवाज़ पर वो न चाहते हुए भी इस तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। हाथ लगाते ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी कि सामने से दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर जो मंज़र उसे देखने को मिला था, वो उसकी सांसें सीने में ही रोक चुका था। सामने ही सिकंदर सियाल पाशा अपनी तमाम तरवजाहत के साथ कुर्सी पर टाँग चढ़ाए बैठे हुए था, जबकि उसके हाथ में चमकती हुई सियाह पिस्तौल दिखाई दे रही थी, जबकि सामने ही दो नौजवान घुटनों के बल बैठे गिड़गिड़ा रहे थे। उसके आसपास उसके तमाम लोग पहले ही खड़े हुए थे। लगता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा पढ़ने कल आए हैं जेकब। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये इलाका तुम्हारे अंडर काम करेगा? शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। जब मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि यहाँ औरतों की दलाली नहीं होगी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इटली में औरतों को यहाँ लाकर इनकी जिस्म फरोशी करवाने की? ये इलाका मेरा है, क्या तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं रहा? दोनों खूनियां घुटनों पर टिकाए हुए झुककर उनकी आंखों में देखते यूं गोया हुआ था कि वो दोनों की सांसें तक रुक चुके थे।
जिमी तो बाकायदा काँपना शुरू हो चुका था। उसने ये कब सोचा था कि वो यूँ बुरे तरीके से फँस जाएगा? मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे पाशा, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं इन लड़कियों को भी इनके वतन वापस भेज दूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे इलाके में अब कभी भी दिखाई नहीं दूँगा। बस मुझे जाने दो, गिड़गिड़ा कर कहते हुए वो अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ चुका था जब सिकंदर सियाल पाशा गन से अपनी थोड़ी कुचलता हुआ उनकी जानिब बेजार नजरों से देख रहा था। सैम, उसने दूसरा जुर्म कौन सा करने की कोशिश की है जो हमारे इलाके में ममनू है? जैकब के चेहरे पर निगाहें टिकाए हुए वो उससे यूं पूछ रहा था जैसे वो सब जानता हो और ये सवाल सिर्फ उसकी सांस खुश करने के लिए पूछा जा रहा हो। बॉस, इसने छोटे बच्चों को मंशियात में लगाने का जुर्म किया है जो आपके इलाके में ममनू है। मजबूत आवाज में सैम ने उसके करीब झुककर कहा था जिस पर सिकंदर सियाल पाशा की आंखें बेसाख्ता सुर्ख पड़ी। मेरे इलाके में ये दोनों काम ममनू है और तुम लोगों की ये जुर्रत कि मेरे इलाके में ऐसा काम करो। कुर्सी पर सीधे होकर बैठे हुए वो एक टांग पर दूसरी टांग टिकाए हुए इन दोनों को देख रहा था। ये वही पल था जहां हयात ने दरवाजा खोलकर उन्हें देखा। दोनों उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए रैन की भीख मांग रहे थे जब एक के बाद एक गोली चली गई और वो गिड़गिड़ाते हुए खुद वजूद फर्श पर ही ढेर हो चुके थे। हयात ने दहलते हुए दिल के साथ ये मंजर देखा था। उसके लबों से फलक शगाफ चीख बरामद हुई थी। इससे पहले कि वो अपने लबों पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटती, वो सब मिनटों का खेल था। सिकंदर सियाल पाशा ने अपनी गन पास चले हुए सैम की जानिब फेंकते हुए अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे। हयात, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुमने देखा है। जिंदगी में पहली बार वो घबराया था एक औरत के खुद से दूर चले जाने पर। तुमने इन दोनों का कत्ल कर दिया। तुम एक कातिल इंसान हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खौफ से लरजते हुए वजूद के साथ वो कदम पीछे लेते हुए उसे देख रही थी जबकि सिकंदर ने अपने वजूद में बेतहाशा दर्द को फैलते हुए महसूस किया था। एक बार, बस एक बार मुझे समझाने का मौका तो दो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने उन्हें मारा है मगर मेरी वजूहात है। मुठ्ठियां भींचकर खुद पर काबू रखने की कोशिश करते हुए वो आगे बढ़ते उसके बाजू को थामते खोया हुआ था जब एक झटके से हयात का हाथ उठा और सिकंदर सियाल पाशा के गाल पर अपना निशान छोड़ता चला गया। सिकंदर ने सुर्ख होती आंखों के साथ सामने ठहरी हुई हयात को देखा जब वो वही हाथ अपने लबों पर रखकर लरज उठी। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने वतन वापस जाना चाहती हूँ, अपने घर। तुमने मुझे मेरे घर नहीं भेजा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। शायद नजरों से उसके चेहरे को देखकर वो बोलती एक झटके से कमरे की जानिब भाग गई थी जबकि सिकंदर सियाल पाशा ने उसे खुद से दूर जाते हुए देखकर अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचा और फिर वही मुक्का पास मौजूद दीवार पर इस कदर जोर से मारा था कि वहां की दीवार तक कांप उठी। मैडम, प्लीज आप खाना खा लें। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ना ही आप कमरे से बाहर आ रही हैं। कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए रोजी उसे बोलते हुए उसे बाहर आने के जतन कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं खाना रोजी, यहाँ से चली जाओ। जाकर अपने इस बात से कहो कि मुझे मेरे वतन वापस भेज दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। भराई हुई आंखों के साथ बोलती हुई अपने चेहरे को लिहाफ में छुपा चुकी थी। पिछले 2 दिनों से उसने खुद को इस कमरे में बंद कर रखा था। वो सिकंदर सियाल पाशा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इस सिया इंसान की सियाही को अपने नसीब में नहीं भर सकती थी। मैडम, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। सर, ऐसा नहीं है जैसे आपको लग रहा है। इनके पास इतनी ताकत है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो इस कमरे में भी आ सकते हैं। वो आपके भाई को इसके घर से भी अगवा कर सकते हैं मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। ये उनकी मोहब्बत ही है जो आपसे एक औरत से थप्पड़ खाने के बावजूद भी वो आपकी इज्जत और भरम रखने की खातिर इस कमरे में नहीं आए। आप कम से कम बात को समझने की कोशिश तो करें। नरम लहजे में बोलती हुई वो दरवाजा खटखटाते खोए हुई थी जबकि दरवाजे के उस पार मौजूद हयात को सांप सूंघ गया। हाँ, तो ठीक ही तो कह रही थी। ऐसी क्या चीज थी जो सिकंदर सियाल पाशा की पहुंच से दूर थी? तभी एक झटके से उठकर खड़े होते उसने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। तो तुम्हारे बॉस क्या चाहते हैं कि मैं उनकी गुलामी करूं, ये जानते हुए भी कि वो एक कातिल है? मैं उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं? मैं कातिल के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। दर्द और तकलीफ थी जो एक झटके से फट कर बाहर आई थी। पिछले चंद दिनों से उसका नरम और मोहब्बत करने वाला रूप देखकर वो न चाहते हुए भी अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा बना बैठी थी और अब ये सब कुछ उसे सुनने में आ रहा था। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। अगर आप पूरी बात सुन लेती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो लोग औरतों को अगवा करके उनकी जिस्म फरोशी का काम करवाते हैं। वो लोग झूठे बच्चों के जरिए मंशियात करो करके हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं। अगर बॉस उन्हें नहीं रोकते तो अभी तो सिर्फ 2 लोगों का कत्ल हुआ है, नहीं तो पूरी इंसानियत का कत्ल होना लाजमी था। क्या आप अभी भी कहेंगी कि बॉस एक कातिल है? संजीदगी से रोजी उसे देखकर कहते हुए हालात से आगाह कर रही थी जबकि वो तो एकटक रोजी के चेहरे को देख रही थी। जब से बॉस ने सुना है कि आप 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई, उन्होंने अपनी मोहब्बत के बावजूद भी आपको जाने के लिए रास्ता खोल दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं मगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉस एक नहायत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने आपके भाई के इलाज का तमाम खर्चा उठाया। वो इस वक्त कनाडा में अपना इलाज करवा रहे हैं और बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। अगर इस सब के बावजूद भी आपको लगता है कि हमारे बॉस गलत है तो आप जा सकती हैं। अपना हाथ राहदारी की जानिब बढ़ाते हुए रोजी उससे कहते हुए आगे की जानिब बढ़ी जबकि वो भर भरी रेत की मानंद दरवाजे पर खड़ी हुई
हालत का जायजा ले रही थी, तभी उसने अपने कदमों को चलता हुआ महसूस किया। सोच मुंतशिर थी, मगर ज़हन जानता था कि उसे कहाँ जाना है, और वो एक कमरे के दरवाजे के सामने आ ठहरी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए उसने स्टडी टेबल के पार उसे बैठे हुए देखा। आगे बढ़कर उसके गिर्द अपने बाजू बांधती हुई वो अपना वजूद इसके चौड़े सीने में छुपा चुकी थी। क्यों? तुम क्यों हो इतने अच्छे? तुम्हें इतना अच्छा होने की क्या ज़रूरत है? सिकंदर सियाल पाशा, तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था। सिसक सिसक कर रोते हुए उसके गले से लगकर गोया हुई थी, जब सिकंदर बेख्तियार गहरी सांस भरते हुए उससे गर्दन में बाजुओं का हिसार कायम कर गया। मुझे माफ़ कर दें, आगे बीच कर बोलते हुए वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में गोया हुई थी, जिस पर सिकंदर सियाल पाशा गहरी सांस भरते हुए उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूती पर कायम कर गया। तो मुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ही क्यों, और मुझे ही तुम्हारे हर दर्द की दवा क्यों बनना है? संजीदगी से उसके चेहरे को देखकर कहती हुई वो सवाल गोती सबके। अब वो बेबसी से अपने कंधे उचकाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे को देख गया। नरमी से अंगूठों से उसके चेहरे को सहलाते हुए वो उसकी आंखों में एकटक देख रहा था। नहीं जानता कि तुम ही क्यों, बस इतना मालूम है कि शायद मेरा दिल तुम्हारा एतबार तब से करने लगा है जब मैंने तुम्हें सालों देखा, यूं ही अचानक से, और फिर तुम गलती से मुझसे टकरा गई। तब तुमने मुझे छुआ था और मेरे जिस्म पर तुम्हें छूने की तासुरात असरअंदाज नहीं हुए थे। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, वो तुम भी हो जिसे मैं अपने करीब रख सकता हूँ। बेबसी से कहते हुए झुककर उसके लबों को चूमते उसकी आंखों में देख रहा था अपनी बेतहाशा मोहब्बत, और उसके बदले मेरी बेरुखी पर क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? नरमी से पूछती हुई वो उसके सीने पर दोनों हाथों को जमा चुकी थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, नरम आवाज में बोलते हुए वो झुककर उसके माथे को चूम चुका था। कहानी कैसी लगी, इसका इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा, और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।